السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ عشق صرف تم ناول بائی فائزہ احمد کا یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ حد ہو گئی ہے امی، میری بیٹی کے لیے یہی لڑکا ملا ہے پورے خاندان میں؟ نادیہ نے تب کر ادریس صاحب سے کہا جو خود سر تھامے بیٹھے تھے۔ نادیہ پلیز تم پریشان مت ہو، امی نے صرف بات کی ہے، ہم کون سا ذروہ کا رشتہ کر دیں گے وہاں۔ ادریس صاحب نے نادیہ کو ریلیکس کرنا چاہا۔ کیا آپ اپنی امی کو نہیں جانتے جو ایک بار بات منہ سے نکال دیتی ہیں پھر اسے پورا کر کے ہی چھوڑتی ہیں؟ لیکن آپ اپنی امی کو سمجھا دیں، میں ہرگز اپنی بیٹی کی شادی ایک شادی شدہ سے نہیں کروں گی۔ میری بیٹی جیسی کوئی ایک تو ہو آپ کے خاندان میں، میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کوئی ایسا سبب بنائے گا کہ آپ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ نادیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے دل سے اپنی بیٹی کے لیے کہا، جبکہ ادریس صاحب چپ اور پریشانی سے نادیہ کو دیکھ رہے تھے۔ آہ! ذروہ کی چیخ پورے ویرانے میں گونجی تھی۔ چوٹیں تو ازمار کو بھی آئی تھی، لیکن اس کا یہ معمولی چوٹیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ آئے دن ایسی چوٹیں کھاتا رہتا تھا، کبھی ہاتھا پائی سے تو کبھی بائک ریسنگ سے، لیکن وہ نازک سی لڑکی تھی جس کا احساس تھا اسے۔ اس نے ازمار کی کمر کو کس کر پکڑا ہوا تھا، گرتے وقت بھی اسے نہیں چھوڑا تھا، اسے ساتھ لیے ہی گری تھی، جس سے وہ کمر کے بل اس پر گرا تھا جس پر وہ چیخ کر رہ گئی تھی۔ ایک تو زخم آئے تھے اور ایک تو وہ نواب صاحب بھی اس پر ہی گرے تھے۔ ازمار جلدی سے سیدھا ہوا اور اسے دیکھا، جس کے ماتھے پر رگڑیں لگی ہوئی تھی اور بازو پر ہونٹوں کے قریب بھی ہلکا سا خون لگا ہوا تھا۔ بروقت گرنے سے انہیں چوٹیں اتنی شدید نہیں آئی تھی۔ ذروہ اٹھو، کچھ نہیں ہوا۔ ازمار نے بنا اپنی چوٹ کو دیکھے اس کے پاس آیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھا کیا، جو اونچا اونچا رو رہی تھی۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، میں ڈاکٹر کے پاس چلتا ہوں، تمہیں ریلیکس۔ ازمار نے اب کی دفعہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی اور اسے دیکھا، جس کے چہرے کے اطراف میں رگڑیں لگی ہوئی تھی اور ٹانگ پر بھی ہلکا ہلکا سا خون لگا ہوا تھا، شاید ٹانگ پر زخم آیا تھا۔ وہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ذروہ نے ہونٹ لٹکا کر اس سے اپنا درد بیان کیا۔ میں ہوں نا، لے چلتا ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس، ازمار نے سنجیدگی سے اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلایا، ورنہ درد تو اسے کوہنی پر بہت ہو رہا تھا، اپنے چہرے پر بھی جلن کا احساس تھا۔ ازمار ہونٹ بھینچ کر ٹانگ کو سمیٹ کر آہستہ سے اٹھا۔ وہ آہستہ سے بائک کی طرف بڑھا، جو پہلے تو چل رہی تھی لیکن اب خاموش سڑک پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مشکل سے جھک کر بائک سیدھی کی۔ ذروہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی ٹانگ سے بلیڈنگ جاری تھی، لیکن وہ پھر بھی کیسے چل رہا تھا؟ ذروہ نے درد کو ضبط کرتے سوچا، بائک تو سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اوپر سے موسم بھی خراب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اسے اپنی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، پر ذروہ کی وجہ سے فکر مند تھا کہ جلدی سے اسے خطرناک روڈ سے نکلے، لیکن بائک اس کی اس کوشش کو ناکام بنا رہی تھی جو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے زور سے بائک کو غصے سے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا، جس پر زری نے نہایت چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب اس کے قریب آ رہا تھا، لنگڑاتا ہوا۔ زری نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، جو کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینی بیٹا جاؤ بابا کے لیے چائے بنا لاؤ، ارم نے لاؤنج میں بیٹھی زینش سے کہا۔ میں بنا لاتی ہوں، ضلع نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زینش نے بھی التجائی نظروں سے ماں کو دیکھا کہ بنانے دیں آپ ہی کو، میں ڈرامہ دیکھ لوں، جس سے کہا ہے وہی بنائیں گی، جاؤ زینی۔ ارم اسے غصے سے گھورتی ہوئی کمرے میں روم میں چلی گئی۔ ضلع نے نہایت سنجیدگی سے زینی کو دیکھا۔ زینی نے شرمندگی سے نظریں جھکا کر کچن میں جانے ہی لگی تھی جب اس نے روکا۔ بابا کے لیے چائے میں بناؤں گی، وہ غصے سے کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ زینش نے کندھے اچکا کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سے ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ضلع کچن میں چائے بنا رہی تھی جب ہارون کچن میں آیا۔ ضلع ایک کپ کافی پلیز، ہارون کی طرف سے نہایت شرافت سے فرمائش آئی تھی۔ اوکے، میں بھجوا دیتی ہوں تمہارے روم میں، ضلع نے بھی شرافت اور معصومیت سے کہا، جس پر ہارون نے داڑھی کھجاتے ہوئے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اوکے، میں چاچو وغیرہ کے پاس باہر ہی بیٹھا ہوں۔ ہارون مونچھوں کو ہاتھ سے سنوارتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ ضلع کے سامنے جان بوجھ کر مونچھیں سنوارتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی مونچھوں سے کتنا چڑھتی ہے۔ زہر لگتا ہے یہ مجھے اور اس کی مونچھیں، ضلع نے شوگر کا ڈبہ بند کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ سب کو دینے کے بعد وہ ہارون کے پاس آئی، جو کسی فائل کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کر رہا تھا۔ تمہاری کافی، ضلع نے ٹرے اس کے سامنے کرتے ہوئے مصنوعی مسکان سے کہا۔ ہارون نے ٹرے کو دیکھا جس پر 2 کپ رکھے ہوئے تھے، ایک چائے کا، دوسرا کافی کا۔ ہارون طنزیہ مسکرایا، پھر ہلکی سی مسکان سے کافی کا کپ چھوڑے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ضلع نے حیرانی سے کافی کے کپ کو دیکھ کر اس سے دیکھا، جو سنجیدگی سے چائے کے کپ سے سپ لے چکا تھا۔
تم نے کافی کے لیے کہا تھا۔ یہ چائے میری ہے، ضلع نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ سوری ضلع، تم کافی پی لو۔ سر میں بہت درد تھا میرے۔ ہارون نے دادی کو دیکھ کر نہایت معصوم سا منہ بنایا تھا۔ ارے تو کوئی دعا لو نا بیٹا۔ دادی نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے دادی، چائے پیتے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، ہارون نے بہت ہی معصومانہ انداز سے کہا تھا، جبکہ ضلع کا تو دل کر رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے، جھوٹوں کا سردار کا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر غصے والے شدید تاثرات سجے ہوئے تھے۔ ضلع، تم کافی پی لو، اور پلیز مجھے دل میں گالیاں مت نکالنا کہ میں نے تمہاری چائے پی لی ہے۔ ہارون نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پھر سے معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ ارے وہ کیوں تمہیں گالیاں نکالے گی؟ اتنا چھوٹا دل نہیں ہے میری بچی کا، ادھر آؤ اور کافی پی لو بچے، ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دادی نے اسے اپنے ایک طرف بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ضلع، دادی کہہ رہی ہیں کہ کافی پی لو، اور اگر تم نے نہ پی تو میں ہرٹ ہو جاؤں گا، شاید تم نے غصے کی وجہ سے نہیں پی۔ ہارون نے سنجیدگی سے کہا، جس کے چہرے پر 12 بج چکے تھے۔ پی لو بیٹا۔ ذوالفقار صاحب نے چائے پیتے ہوئے بیٹی سے کہا، جو ستواناک سکوڑے بہت بے بسی سے کافی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کافی کا گھونٹ لیا، جس سے اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ کافی میں وافر مقدار میں سرخ مرچ جو ملائی تھی میڈم نے، لیکن ہارون کو بے وقوف بنانا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک نمبر کا ہوشیار تھا۔ ہوشیار تو بھلا کیسے نہ ضلع کی حرکت کو سمجھ پاتا۔ کیا ہوا ضلع، کافی اچھی نہیں بنی؟ نہایت معصومیت سے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب نے، جس پر وہ بنا کچھ کہے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے وہ تعصب سے سر جھٹکتا ہوا چائے کے سپ لینے لگا۔ اٹھو، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے، ازمار نے ارد گرد دیکھتے ہوئے عجلت سے اس سے کہا تھا۔ زری نے بے بسی سے اپنی پنڈلی کو دیکھا، جہاں پر شاید چوٹ آئی تھی۔ اٹھو، ہمارا یہاں ٹھہرنا زیادہ دیر تک صحیح نہیں ہے۔ اس روڈ پر بہت سے قتل و چوری کے واردات ہو چکی ہیں، اور میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ کسی سے لڑ سکوں، ازمار نے اپنے مخصوص روڈ لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ ڈرتی ہوئی کھڑی ہوئی، لیکن وہ چل نہیں سکتی تھی، یہ اس کی کنڈیشن بتا رہی تھی۔ چلو، ازمار کہتا لنگڑا کر آگے بڑھا، لیکن اسے اپنی جگہ جمے دیکھ کر غصے سے پلٹا۔ تم اونچا سنتی ہو؟ ایک تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اوپر سے نخرے دکھا رہی ہو، حد ہے، ازمار نے کافی غصے سے کہا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، زری نے ہچکی سے روتے ہوئے اپنی بات کمپلیٹ کی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہنے والا تھا جب 2 گاڑیاں زن سے ان کے پاس آ کر رکی تھی، جس میں سے اسلحہ لیے بہت سے بھاری جسامت کے آدمی نکلے۔ وہ 5 لوگ تھے اور حلیے سے ہی پٹھان لگ رہے تھے۔ ازمار نے پریشانی سے زری کو دیکھا، جس نے ڈر کے مارے اس کا بازو دبوچا ہوا تھا۔ کون ہو تم، اور رات کے اس وقت یہاں ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے لمبی جسامت والے انسان نے کافی رعب سے پوچھا۔ ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا خان صاحب، ازمار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی اسی روڈ سے اس انسان کو 2-3 بار گزرتے دیکھ چکا تھا۔ تمہارے ساتھ لڑکی ہے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بابا، یہاں پر بہت بری واردات ہو چکی ہیں، جن میں زیادتی اور گواہ بھی شامل ہیں۔ اس آدمی نے اپنی مونچھیں مروڑتے ہوئے انہیں باور کروایا۔ ہم بس نکل ہی رہے ہیں، چلو ذرا، وہ کہہ کر اس کی طرف پلٹا، جو اس کے کندھے کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے لرزتی کھڑی تھی۔ اسے ایک تو درد بہت ہو رہا تھا پنڈلی پر، اور اس سے ان آدمیوں سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہو، بیٹھو گاڑی میں، یہاں سے تم لوگوں کو کوئی کنوینس نہیں ملے گی، اس آدمی نے کہا، جس کا نام لالا تھا۔ وہ دونوں جو ابھی چلے ہی تھے اس کی آواز پر ساکت ہوئے۔ ازمار کی سٹی اسے کسی خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ نہیں، ہم چلے جاتے ہیں، میں نے اپنے دوست کو کال کر دیا، وہ آتا ہی ہوگا، ازمار سنجیدگی سے کہتا ہوا زری کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا، جب انہیں رکنا پڑا کیونکہ بندوقوں کا رخ دونوں کی طرف کر چکے تھے۔ خادم، انہیں گاڑی میں بٹھاؤ، ایک تو پرائی لڑکی کے ساتھ اس وقت عیاشیاں کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو، اوپر سے رعب بھی دکھا رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو لالا کی دہشت کو، آرام سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ گولیاں کھا کر بیٹھو گے۔ بابا، لالا دونوں کو گھور کر کہا، اور مغرور چال چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ ازمار کا دل تو کر رہا تھا سر پھاڑ دے اس گھٹیا انسان کا، جو بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ چکا تھا، لیکن وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسی لیے صرف ضبط کرتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتا گاڑی میں بیٹھا۔ دونوں گاڑیاں تیز رفتاری سے آگے بڑھی۔ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ذروا نے اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گا انسانوں کو، ازمار نے غصے سے کہا۔ وہ پریشان تھا تو صرف ذروا کی وجہ سے، اپنی اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ میں چاہتی ہوں اب ہارون اور زلیخا کی رخصتی کر دی جائے، آخر کو 2 سال ہو گئے ہیں نکاح کو۔ دادی نے تینوں بیٹوں سے بات شروع کی تھی۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا اماں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں، احمد صاحب نے اماں کو دیکھتے ہوئے احترام سے کہا۔ خوش رہو میرے بچے، اماں نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ زینی اور ازمار کی بھی
बात पक्की कर दे या फिर निकाह कर दें। दादी ने चाय का कप उठाते हुए इनसे राय ली थी। अम्मा क्या हुआ, क्या वो मान जाएगा? अदील साहब ने खदशा जाहिर किया। अरे क्यों नहीं मानेगा, ये बात तो इसे मानना ही पड़ेगी, दादी ने अटल लहजे में कहकर सबके एतराज बंद कर दिया। दरवाजे में खड़ी जैनी के चेहरे पर ये बात सुनकर फूल खिल उठे थे। वो शर्माते हुए भाग गई थी अपने कमरे में। वो जानती थी दादी की बात से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता, अजमार भी नहीं। कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लाए हो? अजमार ने इन सबको घूर कर पूछा था। इन दोनों को सुर्ख ईंटों वाली छोटी सी हवेली में लेकर आए थे। यहाँ एक आदमी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था जो इनका सरदार लगता था। जरी इसके कंधे में मुंह दिए खड़ी थी। क्या लगती है ये तुम्हारी? इस आदमी ने माचिस की तीली से दांत साफ करते हुए बेतासुर लहजे में कहा। क्यों बताऊं मैं तुम्हें वो कौन तुम? हाँ, अजमार ने तैश से कहा। ओए मुंह बंद रख, जो पूछा है इसका जवाब दो वरना यही कब्र बना दूंगा तेरी। लाला ने गुस्से से इसका गला दबोचते हुए कहा। अजमार को जख्मी समझकर कमजोर मत समझो, अजमार किसी से नहीं डरता, तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं जो बंदूकों के सर पर शेर बने बैठे हैं। अजमार ने इसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा। जरी ने चौंक कर इसे देखा जिसके खूबसूरत नकूश गुस्से से तने हुए थे। वो हर रूप में इंतहा का प्यारा लगता था। अभी भी इन्हें घूरता हुआ वो कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहा था। बात यह है कि तुम जा सकते हो लेकिन अकेले लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये लड़की हमारे कब्जे में आ जाए फिर वो यहाँ से किसी सूरत नहीं जा सकती, सरदार ने कमीनगी से कहा। जिस पर अजमार के नकूश से इतना गुस्सा जलकर दूर खड़ा सरदार भी चौंक गया था इस छोटे से लड़के को देखकर। जरवा ने नफरत से सरदार को देखा कि देखकर अजमार को देखा। वो चौंक गई थी जिसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बीवी पसंद आ गई और मुझे वो चाहिए एक रात के लिए तो? अजमार की सर्द बात पर सब साकित हुए थे अपनी जगह पर, जिसकी आंखों में सर्दपन उतर आया था। तेरी ये हिम्मत? लाला ने पिस्टल की ट्रिगर पर हाथ रखते हुए कहा। जरी की चीख निकल गई थी गोली की आवाज पर। जरी कब से घर से गायब है और तुम मुझे अब बता रही हो? जुल्फकार ने गुस्से में कंट्रोल करते हुए नादिया से पूछा जो बहुत परेशानी थी। वो रिलैक्स थी कि जरवा अजमार हाउस गई हुई है, लेकिन अब जुल्फकार कह रहे थे जरी वहां नहीं है। इनके पैरों से हकीकत में जमीन सिरकी थी। मैं समझी वो इधर थी, नादिया ने परेशानी से कहा। नहीं है वो यहाँ, करता हूँ मैं कुछ, जुल्फकार ने कहकर गुस्से से फोन बंद कर दिया। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? जुल्फकार ने परेशानी से सोचा, फिर तेजी से हारून की तरफ आए। हारून बेटा जरा बाहर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। जुल्फकार ने इसे लॉन्च में कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हुए कहा। चाचू खैरियत है ना? आज हारून ने इन्हें परेशान देखकर फिक्रमंदी से कहा। बेटा कुछ नहीं, वो औरत मेरी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी। जरी 4 बजे की घर से निकली हुई है और अभी तक घर नहीं पहुंची। जिले से भी मैंने बातों ही बातों में पूछा, इसने कहा इसने तो आज जरी से फोन तक नहीं किया। जुल्फकार ने इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए निहायत परेशानी से कहा। आपने जुलेखा को बताया? हारून ने बींच कर इससे पूछा। नहीं बेटा, मैं इसे परेशान नहीं कर सकता। इन्होंने सुर्ख आंखों से इसे जवाब दिया। चाचू आप परेशान ना हो, मैं अपने दोस्त अहमद से कहता हूँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। आप किसी को कुछ मत बताइएगा, हो सकता है वो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ चली गई हो। आप परेशान ना हो, मैं निकलता हूँ, पहले चेंज कर लूँ, आप आराम करें। हारून उजले से कहता अंदर तेज कदमों से भागा। उफ, देख कर नहीं चल सकते, मेरी नाक तोड़ दी। जिले ने नाक पर हाथ रखकर इसे गुस्से से डांटा। टूट ही जाती तो अच्छा था, वो कहता हुआ ऊपर रूम में चला गया। जिले ने खुले मुंह से इसकी पुश्त को देखा। इडियट इंसान, जहर लगता है मुझे, इसे हमारे घर में ही पैदा होना था, बड़ी मूंछों वाला निकम्मा इंसान। जिले नाक मसलती गुस्से से कहती हुई अब ऊपर कमरे की तरफ बढ़ी थी। जैनी मुस्कुराते हुए सिर्फ अजमार के ख्यालों में खोई हुई थी। उफ अल्लाह, अजमार सच में मेरा हो जाएगा? वो नाक चढ़ा मेरा हो जाएगा। हाय, मैं क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं मैं अपनी खुशी को? जिनिश ने पिलो दूर फेंकते हुए खुशी से ऊंचा बड़बड़ाई। अजमार इसका नाम लेकर वो खुशी से बेड पर उछली थी। सरदार ने सरस से लाला का हाथ ऊपर किया था जिससे बंदूक का रुख आसमान की तरफ हो गया था और ठाह से फायर हुआ। जरी की चीख बेसाख्ता थी जबकि अजमार तंजिया नजरों से देखता जरवा को अपने मजबूत हिसार में ले चुका था। होश से काम लो लाला, क्या मैंने तुम्हें कहा था फायर करने को? सरदार ने इसे घूरते हुए पूछा जबकि लाला ने गुस्से से सर झटका। क्या सबूत है कि ये तुम्हारी बीवी है? ये झूठ भी तो हो सकता है, तुम दोनों तो कहीं से भी मियाँ बीवी नहीं लगते। सरदार ने हल्की तंजिया मुस्कान से दोनों को बावर करवाया। मैं सबूत देना जरूरी नहीं समझता, और वैसे भी मुझे पता होता कि रास्ते में हमें तुमसे गुंडे टकरा जाएंगे और वो निकाहनामा मांगेंगे तो मैं ले आता साथ। अजमार ने संजीदगी से ही न जवाब देकर जरी को देखा जो हैरत से सारा मुंह खोले इसे देख रही थी। अजमार की ब्लू आइज में कोई तासुर नहीं था। सरदार, आप क्यों इसकी बातें सुन रहे हैं? लड़की
छीनिए और निकालिए इसे यहाँ से, वरना ये मरेगा मेरे हाथों। लाला ने गुस्से से कहा, बकवास बंद रखो, तुम जानते हो मुझे ब्याही औरतें पसंद नहीं, सरदार ने इसे छिड़कते हुए कहा, जबकि अब अजमार की ब्लू आइज में मुस्कुराहट का तासुर था। सरदार, ये झूठ बोल रहा है, आपको कहाँ से शादीशुदा लगते हैं, अभी निहायत कम उम्र है ये दोनों। लाला ने सच होते हुए सरदार को समझाया। वो ये लड़की किसी सूरत हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, फिर इसे सरदार के लिए कोई और शिकार तलाश करना पड़ता। अब की दफा सरदार मुस्कुराया, अगर तुम दोनों शादीशुदा हो तो फिर से निकाह करो मेरे सामने, ताकि मुझे यकीन आ जाए। सरदार ने दाढ़ी खुजाते हुए कमीनगी से जरी को देखते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था अगर वो दोनों निकाह झूठ बोल रहे हो तो कभी भी निकाह नहीं करेंगे। जिस पर दोनों के चेहरों पर तारीख साया लहराया। तो क्या हुआ लड़के, निकल गई सारी हवा? लाला ने गुस्सा निकालते हुए कहका लगाते हुए तंजिया मुस्कान से कहा। अजमार मुस्कुराया था। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पर निकाह कर लूंगा? अजमार ने रूड लहजे में कहकर जरवा को देखा, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। एक फैसला ले लिया था इसने, वो कभी तैयार ना होता अगर इसके आंसू ये काम कर चुके थे। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद तुम लोग हमें शराफत से यहाँ से जाने दोगे। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं। अजमार की अटल आवाज सबको चौंका गई थी। वो तो समझे थे वो इनकार कर देगा इस निकाह से, लेकिन वो अभी अजमार को नहीं जानते, जो एक बार फैसला कर लेता था फिर कौन था जो इसे फैसले से हटा सके। सरदार और लाला समेत सब हैरत से इन्हें देख रहे थे। सरदार, आई एम वेटिंग, बुला लें अब मौलवी को। अजमार की स्पाट आवाज पर सरदार ने लाला को आंखों से इशारा किया मौलवी को बुलवाने का। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो? जरी ने इसे देखते हुए हैरत से पूछा, जिस पर इसकी आंखों में सटपन उतरा था। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैडम, इसलिए चुप रहे तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए। अजमार के सर्द सी आवाज पर वो डर सी गई थी और अभी भी इसके मजबूत हिसार में छुपी हुई थी। फिर क्या था? मौलवी ने दोनों को एक मजबूत बंधन में बांध दिया। वो दोनों हैरत ज़दा से थे। कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया था, जिस पर जरी की आंखें तो बरस रही थी, जबकि अजमार स्पाट से तासरात से सरदार और लाला को देख रहा था, जिसकी चेहरे से इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। मैं जानता था, मैं चाहता तो 1 मिनट लगाता तुम्हें इस दुनिया से उठाने में, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गए थे। तुम में एक नडरपन झलकता है जो मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ, पुलिस हमारी अपनी है, अगर ले आना चाहो तो शौक से ले आना। सरदार ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चलो जरवा। अजमार संजीदगी से कहता, इसकी कलाई पकड़े पलटा, अगर तुम चाहो तो हमारे आदमी तुम्हें छोड़ आएंगे यंग मैन। सरदार ने खलूस से इसे ऑफर दी। अजमार मुस्कुरा कर पलटा, फिर जरी की कलाई छोड़े सरदार के पास आया। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरा निकाह अभी ही हुआ है, समझ तो गए होंगे। अजमार तंजिया मुस्कान से कहकर झुका, टेबल पर से पिस्टल उठाता सबके हैरत से मुंह खुले देखता हुआ मगरूर चाल चलता जरी के पास आया, जो तकलीफ से होंठ भींचे हुए थी। अजमार ने पिस्टल को पॉकेट में घुसाया और दूसरे ही पल जरी इसके बाजू में थी। वो लंगड़ा कर चलता दरवाजे के पास पहुंच चुका था जब लाला ने पिस्टल का रुख इसकी तरफ किया। जाने दो दोनों को, ये मेरा फैसला है। सरदार ने लाला से गुस्से से कहा, लाला इसने हमसे झूठ बोला है। लाला ने गुस्से से कहा, माफ किया इसे, मुझे ये लड़का अपना अक्स लगता है। सरदार ने इसकी चौड़ी पुश्त को देखते हुए कहा, जिस पर लाला ताज्जुब से सर झटकता रह गया। अजमार ने लरजती हुई जरवा को रोड पर आहिस्ता से खड़ा किया, जो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकी रोक चुकी थी। अजमार ने संजीदगी से इसे देखकर पॉकेट से सेल निकाला। अजमार स्पीकिंग, मैं चमन रोड पर हूँ, जल्दी से आ जा 10 मिनट में। अजमार ने हसीब से कहकर फोन रखा। इससे देखा जो एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी, वो पूरी तरह भीग चुकी थी। बारिश की अचानक तेज होती बोजार से भीग तो वो भी गया था। एक मजबूत जसामत का था, जिस पर सर्दी की तेज बारिश का कोई खास असर फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो एक कमजोर सी लड़की थी जो हल्का हल्का कांपती इसे चौंका गई थी। तुम ठीक हो? अजमार ने इसके करीब आते हुए पूछा। नहीं, वो बस यही कह सकी थी। वो कैसे इसे बताती कि चोट से ज्यादा दर्द तो इससे यह था कि जब सबको पता चलेगा वो कैसे फेस कर पाएगी। हसीब आ रहा है यहाँ से, हम सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। अजमार ने संजीदगी से इसके आम नकोश से सजा चेहरा देखा था, जिसकी नाक में सजी लौंग इसका सारा हार श्रृंगार थी, जो इसके चेहरे को अजीब सी रोशनी बख्शती थी। जरी खामोश ही रही, वो नजरें झुकाए रो रही थी, जिसका अंदाजा अजमार को भी था। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। वो हारून की गाड़ी को देखकर हैरान रह गया था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हारून ने हैरान होते हुए दोनों से पूछा। बस भाई, जरवा की गाड़ी खराब हो गई थी, मैं इसे घर लेकर ही जा रहा था, लेकिन हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने हसीब को कॉल कर दी थी, अभी आता ही होगा।
अजमान ने संजीदगी से इसे आधी अधूरी बात बताई, जिस पर ज़रवा ने ठटक कर इसे देखा। ये नहीं जानता था कि इस आधी छुपाई हुई बात का क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर जानता तो बता देता। उफ, तुम दोनों को तो बहुत चोटें आई हैं, हारून ने तासुफ से दोनों को देखते हुए कहा। मैं पहले चाचू को फ़ोन कर दूं, वो बहुत परेशान है। और मैंने तो अहमद से भी कह दिया है, हारून ने कहकर पहले चाचू को फ़ोन किया, फिर अहमद को। आओ जरी, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाऊं। हारून ने इसे कंधे से थाम कर उठाया। जब सरहद से वो दोनों तक आए, भाई आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं इसे लेकर आता हूँ, अजमान ने संजीदगी से कहा। हारून मुस्कुराया। मैं ले चलता हूँ, हारून ने कहकर इसे कंधे से पकड़कर उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। अजमान ने संजीदगी से आंखें स्क्वेर कर दोनों को देखा, फिर होंठ भींचकर गाड़ी तक आया और आगे बैठता। दरवाज़ा जोर से बंद करना नहीं भूला था। आहिस्ता यार, तोड़ोगे क्या? हारून ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। जाबन, इसने सेल फोन निकालकर हसीब को मैसेज करने लगा कि मत आना। ज़रवा ने इस सितमगर की पुश्त को देखा, जिसकी खूबसूरती की मिसालें सब देते थे। जहाँ जाता था सबको चौंका देता था। और वो क्या थी, एक आम सी शक्ल की, जिसे सब ने आम सी कहकर खानदान के लड़कों ने ठुकरा दिया था। ऐसी बहुत सी जहरीली सोचें थी जो इसे घेरे हुए थी, जबकि अजमार आंखें मूंदे लेटा हुआ था। जब वो दोनों घर आए तो सब बेचैनी से लॉन्च में इनका वेट कर रहे थे। नादिया को बता दिया था जुल्फकार साहब ने कि वो घर पहुंच गई है। मैंने तुम जैसा लापरवाह इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। खुद तो रोज़ कहीं ना कहीं चोट लगा लेते हो, आज बच्ची को भी लगवाए हो। अदील साहब ने गुस्से से इसे डांटा, जो लापरवाह अंदाज में इन्हें देख रहा था, जैसे वो कैसे किसी और को डांट रहे हो। जरी जिले से पट्टी करवाती इसे देख रही थी, जिसकी वाइट पैंट पर खून जम गया था। चाचू प्लीज़, इसने कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। आओ अजमान, तुम्हारी पट्टी कर दूं। हारून ने इसे पकड़ कर कहा, जो दुरुस्तगी से अपना हाथ छुड़ाता रूम में जा चुका था। अदील, आप भी हद कर देते हैं, बच्चा जख्मी है लेकिन आपको कोई परवाह नहीं। मुबीन तासुफ से कहती इसके पीछे लपकी। हारून भी अजमान के पीछे गया था इसकी पट्टी करने। जुल्फकार साहब ने भी सर झटक कर जरी को देखा, जिसका सांवला चेहरा कमला कर रह गया था। जिले, जरी को दूध में हल्दी मिलाकर दो और पेन किलर याद से दे देना इसे। जुल्फकार साहब ने जरी के माथे पर होंठ रखते हुए जिले को ताकीद की थी, जो परेशानी से जरी को देख रही थी। बाबा की बात पर सर हिलाकर उठी थी। उठो, मेरे कमरे में चलते हैं, चलो आराम करो, बुखार हो रहा है तुम्हें, जिले ने फिक्रमंदी से इसे उठाते हुए कहा। जिले ने इसे हल्दी मिला दूध पिलाकर सुला दिया था, फिर चेंज करके लेटी और जरी को देखने लगी। वो इसकी बहन थी, इसे सबसे ज़्यादा अजीज थी, लेकिन वो इससे हमेशा रूड हो जाती थी। अरे तुम्हारी बेटी भी अजीब है, जब देखो कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती है। वाह वाह भाई वाह, फरजाना बेगम ने मुंह बनाते हुए नादिया पर तंज किया। वो घर इसके बाप का है अम्मा जी, नादिया ने भी दांत पीसते हुए कहा। हाँ, वो बाप जिसने अपने गले से उतारकर मेरे बेटे के मत्थे मार दी, अम्मा ने नाक के नथने फुलाते हुए तंज किया। इसका बाप हर महीने लाखों रुपए इसके अकाउंट में जमा करवाता है अम्मा, इसे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है। नादिया ने सब्जी की टोकरी उठाते हुए गुस्से से इन्हें बावर करवाया था। हाँ, जो भी हो, लेकिन मैंने अब जवाब दे दिया है मंसूर के घर वालों को, और देना, और दुनिया जानती है फरजाना अपनी बात से नहीं पलटती, फरजाना ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि नादिया ने सदमे से इन्हें देखा। अम्मा, आपने किसकी इजाज़त से इन्हें ज़बान दी थी? इसका बाप अभी जिंदा है, नादिया ने सदमे से इनसे कहा था। जो भी हो, इसकी शादी मंसूर से ही होगी, बता रही हूँ मैं, और मंसूर को भी पसंद है वो। अम्मा ने पान मुंह में डालते हुए इसके सर पर बम फोड़ा था। क्या सब जानते थे मंसूर किस कमाश का आदमी था? नादिया से तो बात ही ना हो पाती। मंसूर वो जो स्मगलिंग का काम करता था और शादीशुदा था, लेकिन बीवी 2 साल पहले फोत हो गई थी। फरजाना की बहन का बेटा था, जो जरी से 11-12 साल तो बड़ा था ही। आपी, मैं अब ठीक हूँ, घर चली जाती हूँ, अम्मी परेशान हो रही होंगी। ज़रवा ने दूध का गिलास खाली करते हुए जिले से कहा, जो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार खड़ी थी। कल चली जाना, आज यहीं रहो, जिले ने इसका माथा छूते हुए मोहब्बत से कहा। पर आपी, कोई बात नहीं, सुनूंगी मैं तुम्हारी, आज तुम इधर ही रहोगी, जिले ने बैग उठाते हुए कतियत से कहा। जिले के जाने के बाद वो बेजार सी बैठी थी, फिर उठकर बाहर आई। सारा लाउंज खाली था। वो लंगड़ा कर चलती हुई बाहर आ गई। स्विमिंग पूल का पानी नीला इसे बहुत भाया था। लगता है सब अपने अपने काम पर चले गए, ज़रवा ने मुंह बनाते हुए कहा। वो स्विमिंग पूल के बिल्कुल करीब खड़ी आने वाले हालात के बारे में सोचती परेशानी सी लब बींचे खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसकी तेज जवाब पर वो फिसल कर स्विमिंग पूल के शफाफ पानी में गिरी थी। आह, ज़रवा चीखती हुई हाथ पैर मार रही थी। ओह शिट, अजमार शर्ट उतारकर फेंकता हुआ पानी में कूदा था। इडियट, अजमार ने खींच कर इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, जिसने इसको अपनी कमज़ोर बाहों में भरकर
खुद को संभाला था। क्यों कूदी जब तैरना नहीं आता था? अजमान ने इसे झिड़कते हुए कहा। वो इसके सीने में सर रखे कांपती हुई पानी को देख रही थी। ये क्या हो रहा है? जैनी की आवाज़ पर अजमान ने इसे खुद से अलग किया, जो इससे लिपटी हुई थी। जीनिश की आवाज़ पर सरस से इससे अलग हुई थी। जैनी उलझे हुए तासरात से दोनों को देख रही थी, जो दोनों भीगे हुए और एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। जरवा पानी में गिर गई थी। इसने जरवा की शर्मिंदगी से सुर्ख होता चेहरा देखकर संजीदगी से जैनी को बताया। ये सब भी इसने जरवा के लिए ही कहा था, वरना वो अपनी सफाई किसी को देना पसंद नहीं करता था। वो शर्ट पकड़े हुए अंदर की तरफ बढ़ा था। जीनिश ने इसे देखा, जो गीले कपड़ों पर गीला दुपट्टा ओढ़ती बिना इसे देखे अंदर चली गई थी। जीनिश ने सपाट तासरात से जरी के भीगे सरापे को देखा। इसे कहाँ बर्दाश्त था कि अजमार को कोई नजर भर कर भी देखे, और जरी तो फिर इसके हिसार में थी, अपने भीगे हुए सरापे के साथ। जिनिश ने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया और फिर अंदर आई। वो आज कॉलेज नहीं गई थी, इसीलिए इस वक्त घर पर नजर आ रही थी। जिले सख्त तासरात से इसे देख रही थी, जो डॉक्टर रबील से हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो पेंसिल मुंह में डाले ग्लास वाल से दोनों को खिलखिलाते हुए देख रही थी। मेरी बला से जिससे मर्जी बातें करें। लेकिन अब इसे चौंकना पड़ा था जब हारून ने झुक कर रबील के कान में कुछ कहा था, जिससे रबील बेसाख्ता हंसी। ये हॉस्पिटल है कि जिले ने दोनों के सामने आते हुए मसनूई मुस्कान से दोनों को याद दिलाया, जिस पर दोनों ने सामने देखा, जहां वो मखसूस व्हाइट कोट पहने, हाथ सीने पर बांधे, दोनों को मखसूस मुस्कान से देख रही थी, देखते हुए याद दिला रही थी। आई नो डॉक्टर जुलेखा। रबील, आप पेशेंट नंबर 30 को देख ले, ये रही इसकी फाइल। हारून ने जिले से मुखातिब होकर रबील से कहा, जो फाइल पकड़कर सर हिलाती हुई चली गई थी बिना जिले को देखा। जी तो डॉक्टर जुलेखा, कुछ कह रही थी आप? हारून ने कोट बाजू पर डालकर जिले से पूछा, जो नाक चढ़ाए इसे सख्त गुस्से से देख रहा था। ये फ्लर्ट वगैरह मेरे हॉस्पिटल से बाहर जाकर किया करो, यहाँ का माहौल मत खराब करो। जिले ने नाक चढ़ाते हुए इससे कहा, जिसके खूबसूरत होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चमकी थी। जिले, ये हॉस्पिटल मेरा और चाचू का है, आपसे किसने कहा ये आपका है? लेकिन अगर आप मेरे बीवी की हैसियत से कह रही हैं तो ठीक है, फिर आपका कहना बनता है। हारून ने इस बार काफी संजीदगी से कहा, जिस पर जिले ने इसे घूर कर देखा। तुम्हारी बीवी तो मैं कभी नहीं बनूंगी डॉक्टर। तुम्हारी बीवी तो मैं कभी नहीं बनूंगी डॉक्टर हारून, ये हसरत तो कब्र में ही लेकर जाओगे तुम। जिले ने गुस्से से तिल मिलाकर कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई। आपकी जिंदगी में ही ये हसरत पूरी होगी डॉक्टर जुलेखा। हारून अहमद। हारून ने इसकी पुश्त को देखकर संजीदगी से कहा, एक कम थी जो ये भी आ गई, पता नहीं कब छोड़ेगी ये दोनों हमारी जान। इरम ने कपड़े तय करते हुए कहा, अम्मी आपको क्या कहती हैं? वो तो अच्छी हैं, अपना कमाती हैं। जैनी ने एप्पल खाते हुए जिले की साइड ली। अरे मुझे तो एक आंख नहीं पाती और अब एक और आकर हमारे सर पर बैठ गई है, इरम ने मुंह बनाते हुए कहा। दरवाजे के पास खड़ी जरी की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। वो जानती थी इरम इन दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन अब इनके मुंह से सुनकर पता नहीं आंसू क्यों बह रहे निकले थे। वो आंसू साफ करके जिले के कमरे में आई, जहां अपनी बड़ी सी शीशों वाली काली चादर ओढ़ी बैग पकड़कर धीमे कदमों से चलती बाहर आई। दादी मैं चलती हूँ, अम्मी बुला रही हैं। जरी ने लाउंज में बैठी दादी के सामने सर झुकाते हुए इजाजत दी। अरे बुलाने दो इसे, तुम्हारी तबीयत अभी कहाँ संभली है? दादी ने फिक्रमंदी से इसका जर्द चेहरा देखा। दादी मैं ठीक हूँ, इजाजत दे मुझे, इसने दादी के गालों पर बोसा देते हुए कहा। दादी ने सर हिलाकर इसे जाने की इजाजत दी। वो बाहर आई। गाड़ियां तो 2-3 खड़ी थी, लेकिन वो किसी को बिना कोई तकलीफ दिए बाहर आ रही थी। वो रोड पर धीमे कदमों से चलती, साथ साथ आंसू भी साफ कर रही थी। पता नहीं मेरा वजूद क्यों किसी को अच्छा नहीं लगता। जरी ने बहते आंसू साफ करके तलखी से पूछा। रुको बेवकूफ लड़की, पीछे से आती तेज आवाज पर इसे रुकना पड़ा था, लेकिन वो पलटी नहीं थी। अजमार खुद ही इसके सामने आया था। जब घर में 2-3 गाड़ियां हैं तो पैदल घर से क्यों निकली? हाँ, इसने अपनी ग्रीन आईज सुखेरते हुए इससे तंग कर पूछा। जवाबन इसने इसे देखा, अपनी आंखें झुका ली। तुमसे बात कर रहा हूँ। अजमार ने इसे खामोश देखकर कंधों से पकड़कर झंझोड़ा में चली जाऊंगी। जरवा ने अपना बाजू आजाद करवाते हुए आहिस्ता से कहा। अजमार ने संजीदगी से इसे देखा, जो नजरें झुकाए होंठ काटती रही खड़ी थी। यही रुको, आ रहा हूं मैं। वो दाएं बाएं सर हिलाता इसे ताकीद करता पलट कर घर में चला गया। जरी ने चेहरे से पसीना अपनी चादर से साफ किया और आहिस्ता से आगे बढ़ी। जब वो एक दूसरी बाइक लिए आया था, बैठो, अजमार ने संजीदगी से इससे कहा, जबकि जरवा ने खौफ से बाइक को देखा। मैं बाइक पर नहीं बैठूंगी। जरी ने खौफ ज्यादा लहजे में कहा। बात सुनो मुझे, नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठो। अजमार ने इस बार शाम के साए फैले हुए थे। हारून और वो एक घर में बैठे थे जो सारा मिट्टी का
शाम के चाय फैले हुए थे। हारून और वो एक घर में बैठे हुए थे जो सारा मिट्टी से बना हुआ था। अरे इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, तुम दोनों आज इधर रुको, ये तो मुझे अच्छा लगेगा। एक दरमियानी उम्र की औरत ने इनके साथ चाय की प्यालियां रखते हुए बनावटी लबू लहजे से कहा। वो दोनों चलते जा रहे थे जब इन्हें एक इकलौता घर मिला था जो गांव से काफ़ी फासले पर था। औरत इन्हें ज़बरदस्ती साथ ले आई थी। जिले की हालत देखते हुए हारून ने भी मना कर दिया। आपके बाकी घर वाले कहाँ हैं? हारून ने सलीमा नामी औरत से पूछा जिसका पहनावा इसे हरगिज़ घर का नहीं लगता था। वो औरत नीले डिज़ाइनर सूट में मुलव्विस थी जिसे देखकर हारून हैरान हुआ था कि घर तो मिट्टी का बना हुआ और सूट इतना कीमती। बस क्या बताऊं मैं आपको, शादी हुई तो शौहर मर गया, बच्चा तो कोई था नहीं, शहर की ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं यहाँ के पुरसकून माहौल में आकर बस गई। हलीमा ने दोनों को बताते हुए चेहरे पर अफसुर्दगी के तासरात पैदा किए। जिले चाय पीती हारून को देख रही थी जिसका चाय का कप यूं का त्यों पड़ा हुआ था। हारून साहब आप भी चाय पीजिए ना। हलीमा ने इसकी तवज्जो चाय पर दिलवाई। मैं पीता हूँ लेकिन ठंडी चाय, गर्म चाय मुझे सूट नहीं करती, हारून ने संजीदगी से जवाब दिया जबकि चाय पीते जिले को बहुत जोर का उच्छू लगा था। भला ठंडी चाय हारून, ये तो क़यामत की ही निशानी होगी। वो तो गरम गरम चाय पीता था। अगर जरा जो चाय हल्की सी भी ठंडी हो जाती तो वह चाय पीता नहीं था बल्कि दूसरी बनवा कर पीता था। और अब जनाब कह रहे थे कि वो चाय पीते हैं लेकिन ठंडी गरम चाय सूट नहीं करती। वाह! जिले तो हैरत की ज्यादती से इसे देख रही थी। अच्छा आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं कोई काम वगैरह देख लूं, हलीमा कहती हुई दूसरे कमरे में चली गई। तुम कब से ठंडी चाय पीने लगे? जिले ने अपना कप खाली करते हुए वर्ता हैरत से पूछा। जब से पानी में गोता लगाया है, हारून ने जज करती मुस्कान से जो जिले को सर तक पैर सुलगा गई थी। अब तुम सारी जिंदगी मुझे यही ताना मारते रहोगे मैंने पानी में गोता लगाया है? जिले ने सतुआ नाक चढ़ाते हुए इस बड़ी मूंछों वाले को देखा। तुमने कौन सा सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है? हारून ने चाय का कप पकड़ते हुए गहरी बात कही जिस पर जिले के चेहरे पर स्पाट से तासरात छाए थे, लेकिन बैक वक्त वो चौंकी। हारून चाय को पास ही बनी एक क्यारी में गिरा चुका था। ये तुमने क्या किया? इसने इतनी मेहनत से चाय बनाई थी। जिले ने खफगी वाले तासरात से इसे देखा। हारून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसे देखता रहा। जिले इसकी नज़रों के इर्तिकाज से पहली दफ़ा सख्त घबराई थी। मुझे लगता है ये राइटिंग आगे पीछे हुई है। चलो, ये क्या कर रहे हैं आप? जरवा ने इसके हिसाब से निकलने की कोशिश करते हुए बेयकीनी से कहा। वही जो आपने सुना। अजमार के नकुश मुस्कुराए थे इसके झुंझलाते हुए तासरात देकर। वो सुन चुकी थी जुलेखा और जीनी से कि दुनिया में अजमार जैसा शायद ही कोई ढीठ वाक़या हुआ हो। मैं ऐसे ही बैठूंगी जैसे तुम कहोगे, प्लीज़ मुझे घर छोड़ाओ अब, जरवा ने रूहान से लहजे में इसे देखते हुए कहा। इसे पता था ऐसे तो वो टलेगा नहीं। जिसके लबों पर शायद पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट चमकी थी जो जरवा को मबहूत कर गई थी। कोई मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है भला? जरवा ने इसे देखते हुए दिल में सोचा। जो बाइक में चाबी लगाता इसे स्टार्ट कर चुका था। बैठना पसंद करेंगी आप? अजमार ने इसे देखते हुए पूछा जो बाइक के पास तसबसब सी खड़ी थी। वो उसके मीठे से तंज पर आहिस्ता से बाइक पर बैठी। अजमार मुस्कुराया था अपने गिर्द इसके बंधे हुए हाथों को देखकर। घर में से कोई इसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखता था जरूर वो शौक से ही बेहोश हो जाता। जरवा की नजरें इसके सिल्की ब्राउन बालों में थी जो तेज हवा से उड़ते हुए इसे बहुत अच्छे लगते थे। जरवा जब घर आई तो चौंक गई थी क्योंकि लाउंज में मलक मंसूर और उसकी वालदा माँ बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। जरवा ने हल्की सी मुस्कान से इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शाजिया बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया। शाजिया देखने में ही कोई बहुत रौबदार और नफीस सी औरत लगती थी जिन्होंने कंधे पर बहुत खूबसूरत सी शॉल रखी हुई थी। जरवा जाओ बच्चे, जाकर फ्रेश हो जाओ। नादिया ने लाउंज में आते हुए इसे वहां से हटाया। जरवा हल्की सी मुस्कान से सर हिलाती हुई चली गई। मलक मंसूर की नजरों ने इसका दूर तक पीछा किया था। ये आज कुछ ज्यादा लेट नहीं आई? ध्यान रखा करो जवान लड़की है, फरजाना ने मुंह बनाते हुए नादिया से कहा जो मेहमानों के आगे चाय वगैरह रख रही थी। अम्मा बारिश थी और बारिश में देर सवेर हो जाती है, नादिया कहती हुई चली गई। देखा कितनी लंबी जबान है इसकी, फरजाना ने शाजिया से कहा जो चाय पी रही थी। अरे ठीक ही तो कह रही है, देर तो हो ही जाती है इस तरह के मौसम में, शाजिया ने अपने धीमे लहजे में कहा। जबकि मलक मंसूर होंठ भींचे सोच रहा था। वो अजमार और जरवा को लेकर सोच रहा था कि जरवा इतनी देर क्या इस लड़के के साथ थी। आपा अब हमें इजाज़त दें और हमें जवाब दे दीजिएगा 1-2 दिन तक। मैं मंसूर की शादी जल्दी करना चाहती हूँ। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, मैं बस अपनी ज़िंदगी में इसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। शाजिया ने धीमे से लहजे में फरजाना का हाथ थामते हुए कहा। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, बस अब जरवा सिर्फ तुम्हारी ही बहू बनेगी और इदरीस भी कोई बात टाल सकता है भला?
फरजाना ने अपने मखसूस तीखे लहजे में कहा, जिस पर मलक मंसूर के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई थी। अगर कोई ना भी माने तो जरवा मेरी ही है खालाजान। मलक मंसूर ने मोबाइल हाथों में घुमाते हुए संजीदगी से सोचा। बट आर यू सीरियस दादी? अजमान ने भवें उचकाते हुए हैरत का इजहार किया। क्या तुम्हारी दादी इस उम्र में तुमसे मजाक करेगी? अदील साहब ने इसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारा और जीनिश का निकाह होगा 25 तारीख को, बेहतर होगा अपना माइंड बना लो। अदील साहब ने कस्टर्ड की प्याली उठाते हुए अटल लहजे में कहा। मुबीन और नवीन ने हैरत से इसे देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सीरियसली डैड, आपको लगता है मैं इतना सीधा हूँ? अजमान ने हाथ पॉकेट में घुसाते हुए तीखे लबो लहजे में पूछा, जिस पर अदील साहब ने प्याली मेज पर पटकी। दादी ने भी चश्मा उतारकर इसे घूरा, जो इंतहाई बदलिहाज वाक़या हुआ। तुम सीधे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी जीनिश से ही होगी। अदील साहब ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। अजमान, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक हमने तुम्हारी ही बातें मानी हैं, लेकिन इस मामले में तुम्हारी कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, व्हाट अ जोक। सीरियसली, पहले आप लोगों ने मेरी कितनी बातें मानी हैं बताएंगी मॉम? आप जरा मुझे, अजमान ने तमस्खुराना लहजे में कहा। तुम पागल हो गए हो, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? दादी ने इसे समझाना चाहा। तो मैं कौन सा बड़ों के सरों पर डंडे बरसा रहा हूँ? जस्ट बात ही तो कर रहा हूँ। अजमान ने कंधे उचकाते हुए बदतमीजी से कहा। उफ, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात सुनते जाना, मेरी भी अब जिद है। तुम्हारी शादी तो तुम्हारी जीनिश से ही होगी। अदील साहब ने गुस्से से कहा, जिसका अजमान पर कोई असर नहीं हुआ था। आपका जो दिल करता है वो करें प्यारे डैड, लेकिन जो आपके बेटे का दिल चाहेगा वो वही करेगा। तंजिया मुस्कान से कहता सीटी बजाता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। पीछे वो सब हैरत के मारे बैठे हुए थे। हाथों से निकलता जा रहा है ये। दादी ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। वो रुका था। सीढ़ियों पर जैनी खड़ी इसे सदमे से देख रही थी। अजमान ने एक बार इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर इसके पास से तेजी से गुजर गया। जैनी ने गुस्से भरी नजरों से इसकी पुश्त को देखा। मुझे नींद आ रही है, जिले ने आंखें मसलते हुए हारून से कहा, जिसने पुरसोच नजरों से इसे देखा। जिले, चलो यहाँ से, यह जगह ठीक नहीं लग रही मुझे। हारून ने इसकी कलाई पकड़ते हुए उजलत से कहा। क्या मतलब? जुलेखा ने उलझते हुए कहा। अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है जिले, जल्दी उठो। हारून ने इसे आंखें मसलते देखकर जबरदस्ती उठाया। जिले भी जल्दी से इसके साथ लपकी। वो औरत इतनी अच्छी है, इसे तो बता दो जाने का। जिले ने इसकी संजीदा से तासरात देखकर कहा। जिले, मुझे वो औरत ठीक नहीं लग रही, बस बिना कुछ बोले जल्दी से निकलो यहाँ से। ये क्या, दरवाजा तो लॉक है। हारून ने परेशानी से बंद दरवाजे को देखा। अब क्या होगा? जिले ने ना समझी से इससे पूछा। हारून ने इसे वो और से देखा जिसका नींद से बुरा हाल था। जिले, वो औरत किसी साजिश के तहत हमें यहाँ लेकर आई है। मुझे पहले तो शक था, लेकिन अब यकीन हो गया वो औरत ठीक नहीं। हारून ने लकड़ी के मजबूत दरवाजे को देखकर कहा था। तुम एक नंबर के बदलिहाज इंसान हो, क्या कमी है मुझ में जो तुमने शादी से इनकार किया? जैनी ने नमी लिए आंखों से इससे कहा था। अजमार जो शर्ट उतार चुका था, जैनी के बिना नोक किए आना और फिर इसका पूछना इसने नजरअंदाज किए। पहले शर्ट पहनी फिर जैनी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जैनी, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं, बेहतर होगा अगर तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो तो। इसने खिड़की की तरफ देखते हुए बिना मुरव्वत दिखाई इसे जवाब दिया। जिनिश ने गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। पीछे इसने सपाट नजरों से इसकी पुश्त देखी। वो इसे कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था इससे नरमी से बात करके। अगर जरवा से निकाह ना हुआ होता तो वो फिर भी जैनी से शादी ना करता, बल्कि सारी उम्र किसी से ना करता। जी, आप लड़की देखकर दंग रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत है कि बस क्या बताऊं मैं आपको। हलीमा ने मुस्कुराते हुए चौधरी मुनीब को फोन में बताया था। अगर तुम सच कह रही हो तो इस बार इनाम तुम्हारी सोच से बड़ा होगा। चौधरी मुनीब ने मूंछों को बल देते हुए कमीनगी से कहा। अरे चौधरी साहब, आपको मैं तस्वीर भेजती हूँ लड़की की, मैंने चुपके से बना ली थी इसकी तस्वीर। हलीमा ने मुस्कुराते हुए, जल्दी से भेज दो, मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ, लड़की इसके हवाले कर दो और अपना पैसा ले जाना आकर। चौधरी मुनीब ने कहकर फोन रख दिया था। हलीमा ने मुस्कुराते हुए होंठ भींचे थे पैसे का सुनकर। हारून ने जिले को परेशानी से देखा, जो नींद में गुम हो चुकी थी या शायद बेहोश हो चुकी थी। हारून ने होंठ भींचे और लकड़ी के पुराने मगर मजबूत दरवाजे को देखा, जो तोड़ना बहुत मुश्किल था। और तो कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी, जो कि दरवाजे की तरह ही बहुत मजबूत थी। दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। हारून ने दरवाजे को लात रसीद करते हुए चिल्ला कर कहा। बाहर से कोई आवाज नहीं। हारून के दिमाग में वो मंजर घूमा जब वो औरत जिले को बहुत ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। उफ, वो औरत ठीक नहीं थी। मतलब वो किसी साजिश के तहत हमें यहाँ लाई थी। हारून ने गुस्से भरी नजरों से दरवाजे को देखते हुए सोचा, फिर अपनी बाहों में झूलती जिले को चरपाई पर डाला और दरवाजे की तरफ आया। दरवाजे को बहुत जोर से धक्का मारता वो कोई जुनूनी सा लग रहा था। बाइक खड़ी। हलीमा ने परेशानी से हिलते हुए दरवाजे को देखा। चौधरी जी, बस जल्दी से आ जाए। हलीमा ने परेशानी से बाइक की तरफ झांकते हुए खुद से कहा। जी, जरवा ने हैरत से
इदरीस साहब को देखा और फिर नादिया को देखा जो सोफे में बैठी परेशानी से इसे देख रही थी। बेटा, आई नो वो तुमसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन बच्चे मर्द का बड़ा होना, वो बड़ा हो तो वो बहुत ख्याल रखता है अपनी बीवी का। और ये भी तो सोचो, तुम वहाँ राज करोगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। इदरीस साहब ने इसे समझाया, जिसके तासरात बहुत उलझे से थे। शौक से, अरे इदरीस, इसे कोई एतराज़ थोड़े ही होना है, ये खुद ही तो कहती है इसने अपनी बेटी की तरबियत बहुत आला पैमाने पर की है। फरजाना ने पान मुंह में निकाल डालते हुए तंग कर कहा था, जिस पर जरवा ने धुंध लाई हुई नजरों से नादिया को देखा, जो स्पाट सी नजरों से फरजाना बेगम को देख रही थी। बेटा, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगे, जबान दे चुका हूँ मैं इन लोगों को। इदरीस साहब ने इसे देखा, वो मान भरे लहजे में। जरवा ने सर उठाकर इदरीस साहब को खाली खुली नजरों से देखा था। अभी तो इसके दिल में किसी के एहसास जगह ही था, अभी ही तो इसने किसी की नजरों में अपने लिए केयरिंग देखी थी। बहुत से पल इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन वो खामोश थी, बहुत खामोश। अजमान बाल हवा में उछालता हुआ सड़क पर स्पाट तासरात से दौड़ता जा रहा था। जब फुटबॉल किसी के पैर के पास जा कर रुका था, अजमान ने संजीदगी से सामने देखा, जहाँ 4-5 बंदे खड़े थे, हाथों में डंडे पकड़े। वो कोई शक्ल से ही बदमाश लग रहे थे। अजमान के चेहरे पर बहुत प्यारे तासरात आए थे। इससे फ्रस्ट्रेशन से निकलने का मौका मिल चुका था। वो ऐसे ही तो अपना गुस्सा कम करता था। वो बंदे भी चौंक चुके थे इसके होंठों पर स्पाट सी मुस्कुराहट देखकर। क्या तुम लोग मुझे मारने आए हो? अजमान ने अपने हाथ अपनी पैंट में डालते हुए लापरवाही से इनसे पूछा। बिल्कुल, इनमें से एक आदमी ने डंडा अपने हाथ में घुमाते हुए बेतासुर लहजे से कहा। अजमान मुस्कुराकर पलटा। हारून ने अब की दफा खिड़की पर जोर आजमाई की। खिड़की की कुंडी पर जंग लगा होने की वजह से हारून की 1-2 वार पर ही वो झटके से खुल चुकी थी। हारून ने गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया, फिर नजरें चरपाई पर पड़ी जहां वो हाथ पांव छोड़े बेहोश पड़ी हुई थी। हारून ने इस पर झुक कर इसे अपनी बाहों में उठाया। वो इसे उठाकर खिड़की के पास लेकर आया। खिड़की काफी चौड़ी थी, एक बंदा आसानी से बैठकर बेंच बीच में से गुजर सकता था। हारून ने इसे अपने सीने में किसी कीमती चीज की तरह भींचा और खिड़की में बैठा। खिड़की में बैठकर वो नीचे कूदा, क्योंकि कमरा ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, वो आसानी से इसे लेकर कूद सकता था। वो जब से कमरे में आई थी, बस साकित सी हालत में बैठी हुई थी। क्या हो रहा था इसके साथ? इसे कोई खुशी पूरी तरह रास क्यों नहीं आती थी? जरवा ने आंसू पूंछते हुए सोचा। आप? इदरीस साहब को अपने कमरे में देखकर वो चौंक कर खड़ी हो गई थी। बाबा इस वक्त? जरवा ने मुरव्वत में मुस्कुराकर इससे पूछा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बैठो जरवा। इधर। जरवा उलझते हुए इनके पास बैठी थी, और फिर जो इन्होंने जरवा से कहा, बात सुनकर जरवा को साकत कर गई थी। इससे ऐसे लगा जैसे सातों आसमान इसके सर पर आन गिरे हो। मेरी बात पर गौर जरूर कर लेना। इदरीस साहब कहकर कमरे से चले गए थे, और वो इसी तरह बैठी रह गई, साकत किसी मूरत की तरह। पलट कहाँ रहे हो? इस आदमी ने इसे मुखातिब किया। अजमान बिना पलटे मुस्कुराया। एक बात याद रखना अजमान मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है, बल्कि मुकाबिल को भगाने वालों में से है। अजमान ने संजीदगी से जवाब देकर अपनी तरफ बढ़ते आदमी को हाथ के मुक्के से रास्ते में ही रोका था, जो लहरा कर नीचे गिरा था। अजमान तुम सब भी आ जाओ, तुम सब भी। अजमान ने हाथ को आपस में मसलते हुए चिढ़ाया अपनी जज करती मुस्कान से। वो कहा जानते थे इसे जिससे मुकाबला कर रहे हैं वो ब्लैक बेल्ट है, 5 बार रेसलिंग में भी हिस्सा ले चुका है और 5 बार जीत कर भी मैदान से उतरा था। अगर जानते तो इससे मुकाबला कभी ना करते। अजमान ने बिना अपनी जगह से हिले सबको जमीन चटा दी थी। अब सब वो मार खाकर जमीन पर पड़े हुए करा रहे थे। किसने भेजा है तुम लोगों को? अजमान ने एक के मुंह पर मुक्का मारते हुए स्पाट से तासरात से कहा। मलक मंसूर। एक ने अपने होंठों से खून साफ करते हुए कुर्रा कर कहा। अजमान की ग्रीन आंखों में सर्दपन उतरा था। मलक मंसूर, जरवा का कजन। इसने हाथ में नीला रुमाल बांधते हुए सरती आवाज में खुद से कहा, भागो यहाँ से, वरना तुम लोगों का कीमा बनाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसकी सर सी आवाज पर चारों उठकर भागते जहां से आए थे वहीं कहीं गायब हो गया। अजमान फुटबॉल को हाथों में लेकर नीचे रखा, फिर जोर से किक मारता हुआ इसके पीछे भागा था। वो भी पलटा ही था जब इसके सामने हलीमा पिस्टल पकड़े हुए खड़ी थी। कहाँ जाने की तैयारी है हारून साहब? थोड़ी देर मुझे खिदमत का मौका तो दें। हलीमा ने कमीनी सी मुस्कुराहट से कहा। हारून के चेहरे पर तपिश वाले तासरात। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? हारून ने दांत पीसते हुए कहा, बस आपकी खूबसूरत बीवी पसंद आ गई है हमारे चौधरी जी को। मन्नान नामी आदमी ने पीछे से आते हुए इसकी बात पर हंसते हुए कहा, यू बास्टर्ड। हारून ने उससे से खींच कर लात इसके पेट पर मारी, जिस पर मन्नान लड़खड़ाकर
संभल चुका था। पकड़ लो इसे और छीन लो लड़की से, मन्नान ने गुस्से से चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा। हारून ने हैरत से अपने इर्द गिर्द खड़े भारी जिसामत वाले आदमियों को देखा और फिर जिले को जो होश में आ चुकी थी। जरवा ने साकित नजरों से इसे देखा था, जो गार्डन में खड़ा बहुत से लड़कों से उलझ रहा था। यार जरवा, ये इंसान झगड़ा किए बगैर नहीं रह सकता, एनी ने इसे देखते हुए राय दी, जबकि जरवा के नकाहत ज़्यादा चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया था। वो बस पारसी नजरों से इसे देख रही थी। जो शर्ट पहनता वो जरवा की तरफ ही आ रहा था। वो हाथों से बाल संवारता हुआ खूबसूरत सी चाल चलता इसके करीब आ चुका था। जिले को होश में आते देखकर रिलैक्स हुआ था। अब वो इन लोगों से आसानी से निपट सकता था। जिले हैरत से मुंह खोले इन आदमियों को देख रही थी जो इनके सामने खड़े अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इन्हें घूर रहे थे। हारून ने जिले को नीचे इसके पैरों पर खड़ा किया। जिले ने हारून को देखकर हलीमा को गुस्से से घूरा। तुम नीच और बिच औरत, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमारे साथ धोखा करो? तुम्हारी तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने हमें? हाँ। जिले ने हलीमा के पास जाकर इसे धक्का देते हुए गुस्से से कहा। अलबत्ता हलीमा समेत सब ने गुस्से से भरी लड़की को देखा। अलबत्ता हारून के चेहरे पर बहुत खूबसूरत तासुरात आए थे इसे शेरनी के रूप में देखकर। वो अभी जिले और हारून को जानते नहीं थे, जो पूरे खानदान में लड़ाका के नाम से कुछ मशहूर थे। ए लड़की, तुमने मुझे गाली दी और धक्का दिया मुझे? तेरी तो, हलीमा ने भंगार कर थप्पड़ इसके मुंह पर मारना चाहा, जिसे जिले ने रास्ते में ही रोक चुकी थी। ये हाथ अगर मेरे चेहरे पर पड़ता तो सारी उम्र इस हाथ को रोती। जिले ने भी खूब गुस्से का मुजाहिरा किया। पकड़ कर ले जाओ लड़की को चौधरी जी के पास, इसे तो वही सीधा करेंगे। हलीमा ने हाथ को झटका देते हुए चौधरी के आदमियों को हुक्म दिया, जो हुक्म मिलते ही इस सरहद से जिले की तरफ आए थे। इससे पहले वो जिले की गलाई पकड़ता, इसका हाथ रास्ते में ही हारून अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। मेरी बीवी को हाथ लगाएगा तू? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बास्टर्ड इंसान, हारून ने कहते ही इसका हाथ मरोड़ कर इसके पुष्ट पर ले जा चुका था, जिससे इसके हाथ से पिस्टल छूट कर नीचे गिरी थी। बाकी सब हारून की तरफ बढ़े ही थे जब हारून ने इस राजा, जो चौधरी का सबसे खास आदमी था, इसको गले से पकड़कर अपने सामने किया था। जिले ने सरहद से नीचे झुककर इसके हाथ से पिस्टल थामकर हारून के हाथ में दे दिया था। हारून ने पिस्टल कैच करके राजा की खोपड़ी पर रखा था, जिससे सब वहीं रुक गए थे। राजा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, जब से हारून ने पिस्टल इसकी थोड़ी पर मारा था, जिसे वो चीख कर रह गया था, अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो सब पीछे हो जाओ, वरना इस नकारा से हाथ धो बैठोगे। हारून ने सबको गुस्से से वार्न किया। वो लड़ सकता था इनसे, अगर इसके साथ जिले ना होती तो वो इस पिस्टल से सबके दिमाग दुरुस्त कर सकता था, लेकिन अभी इसे इस खतरनाक इलाके से निकलना था। हलीमा ने गुस्से से होंठ भींचकर जिले को देखा, जो हारून के कंधे के पीछे खड़ी गुस्से से सुर्ख होते चेहरे से सबको घूर रही थी। हारून राजा को लिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुआ। बाकी सब भी आगे बढ़े ही थे जब हारून ने इसके पाँव के पास फायर किया था, जिससे सरहद से पीछे हो गए थे सब। अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो यहीं भून दूंगा, हारून ने तेज से सबको वार्न किया। हलीमा ने मुठियां भींचकर, वो अगर यहाँ से निकल गया तो चौधरी ने इसे नहीं छोड़ेगा। क्या करे वो अब? हलीमा ने होंठ काटते हुए लर्ज कर सोचा। चौधरी को अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर इस लड़की का कहीं और ठिकाना नहीं हो सकता सिवाय चौधरी की हवेली के। हारून, क्या मैं इस औरत के बाल खींच लूं? जिले ने गुस्से से कहा, जिस पर हलीमा ने जल्दी से बौखलाते हुए बड़ी वाली शाल अपने सर पर ओढ़ी, जिस पर हारून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी थी। जिले, बाद में इसके बाल खींचना, पहले यहाँ से भाग तो लो। हारून ने इसे हमेशा की तरह तपाया। जिले ने होंठ लटकाकर इसे देखकर नाक चढ़ाया। राजा भरपूर कोशिश कर रहा था हारून की गिरफ्त से निकलने की, लेकिन हारून ने भी इस पर खूब गिरफ्त की हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जा रहे थे। जिले अभी भी दोनों फोन कान से लगाए हलीमा को घूर रही थी। दूर फोन से कान लगाए हलीमा को घूर रही थी। भला इसकी इतनी हिम्मत कि वो जिले को ट्रैप करने की कोशिश करे। जिले ने दांत पीसते हुए दिल में सोचा, इरम, तुम क्यों परेशान होती हो? वो समझ जाएगा, जानती तो हो थोड़ा नखरीला है, लेकिन अदील इसे समझा लेंगे। मुबीन ने अपनी बहन इरम को तसल्ली दी थी, जिसने जब से सुना था अजमार ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, वो तब से परेशान थी। अजमार की जिद का तो सबको ही पता था। मुबीन, पता नहीं क्या होगा, जिनिश तो इसे बहुत पसंद करती है। इरम ने चाय का कप उठाते हुए परेशानी से कहा, मैं जानती हूँ जिनिश इसे पसंद करती है, तुम फिक्र मत करो, अजमार सिर्फ जिनिश का ही होगा। मुबीन ने भी अपनी चाय का कप उठाते हुए इसे तसल्ली दी। और ये जिले क्या वाकई हारून से खुला ले रही है? इरम ने इर्द गिर्द देखते हुए आहिस्ता से अपनी बहन से कहा, हाँ, हो जाए तो जान छूटे इस नक चढ़ी लड़की से, मुबीन ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर इरम ने सर हिलाकर तायीद की।
वो इसके पास आकर रुक चुका था। जरवा ने इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। कहाँ जा रही हैं आप? अजमार ने इसे पलटे देखकर बेसाख्ता पूछा था। आई थिंक मैं यूनी में पढ़ने ही आती हूँ। वो इससे जिताती हुई क्लासरूम में चली गई थी। अजमार ने आंखें सुखेरते हुए इसकी दराज चोटी देखी जो चादर से बाहर झांकती हुई नजर आ रही थी। वो बेंचे इसके पीछे ही गया था। वो आगे वाले डेस्क पर बैठ चुकी थी। साथ ही एनी भी बैठी हुई थी। एनी, आप दूसरे डेस्क पर बैठ जाएं। अजमार साहब ने दरख्वास्त नहीं हुक्म दिया था। एनी और जरवा ने चौंक कर इसे देखा जो इनके सर पर ही खड़ा था। एनी कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरे साथ ही बैठती है। जरवा ने संजीदगी से इसे जवाब दिया था। मिस एनी, आप यहाँ से उठना पसंद करेंगी? अजमार ने भौं चुकाते हुए एनी से पूछा, जबकि इसे इग्नोर किया जो गुस्से से इसे ही देख रही थी। एनी मुंह बनाती खड़ी हो गई थी जबकि जरवा ने होंठ भींचकर इस ढीठ इंसान को देखा था जो सिर्फ अपनी ही मर्जी करता था। वो बैठ चुका था। जरवा के साथ वो सपाट तासरात के साथ बैठी रही। तुम नाराज हो मुझसे? अजमार ने इसकी तरफ महवियत से देखते हुए सर्द लहजे में इससे पूछा जो रेड शर्ट और वाइट कैपरी पहने, सर पर वही ब्लैक शीशों वाली चादर ओढ़े बिल्कुल सादा सी थी और अब इसकी सादगी ही तो अजमार को अपील करती थी। चमकती लौंग इसकी कमजोरी बन चुकी थी जो वो जरवा से तो कहने से रहा। इतने में सर क्लास में इंटर हो चुके थे। जरवा संजीदगी से सर का लेक्चर नोटबुक पर कॉपी करती जा रही थी और वो था कि डीटो पर थोड़ी पर हाथ रखे इसके चलते हाथों की स्पीड देख रहा था। इसकी लिखाई काफी रफ सी थी जिसे अजमान ने नाक चढ़ाकर देखा था। जरवा कब से खुद पर इसकी गर्म नजरें महसूस कर रही थी। अब इसने लब भींच कर इसे देखा था जिसकी ग्रीन आंखें बिल्कुल एक अलग ही रंग में ढल चुकी थी जिसमें शायद कुछ अलग सा तासुर था जरवा के लिए जिसे जरवा समझ नहीं सकी थी। अगर समझ जाती तो खुद पर रश्क करती मगरूर शहजादी की इतनी तवज्जो पर। क्या देख रहे हैं? जरवा ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, आपकी लिखाई बहुत गंदी है। मुझे लगता है इसके लिए आप सेकंड पोजीशन लेती हैं। अजमार ने गुलाबी होंठ दांतों में दबाते हुए काफी संजीदगी से कहा। जरवा ने हैरत से इसे देखा, फिर इतनी नजर अपनी नोटबुक पर डाली। आपको खुद क्या कुछ लिखना नहीं आता और चले हैं मेरे लिखे में कीड़े निकालने? जरवा ने नाक फुलाते हुए गुस्से से कहा। वो काफी माइंड कर गई थी अपनी लिखाई को लेकर। अजमान होंठ बिंचे आंखों से मुस्कुराए थे। इसके जज चौथे ने कुछ इसे काफी प्यारे लग रहे थे। इधर लाए। अजमान ने कहते ही नोटबुक इसके हाथों से ले ली थी और व्हाइट बोर्ड पर लिखा नोटबुक पर उतारने लगा था। जरवा ने गुस्से से इसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। नोटबुक की तरफ देखकर वो चौंक गई थी। जहां वो खूबसूरत लिखाई से लिखता इसे चौंका गया था। इतना नालायक बंदा इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है? जरवा ने इसकी लिखाई देखते हुए दिल में हैरत से सोचा था। हारून और वो इसे एक दरख्त के साथ बांध कर वहां से निकल आए थे। मैं और नहीं भाग सकती, मुझे कहीं से खाना ला दो वरना मैं एक कदम नहीं चलूंगी। जिले ने कमर पर हाथ टिकाते हुए हाँफते हुए कहा। हारून ने इसे संजीदगी से देखा था। डॉक्टर जुलेखा, यहाँ आपको कोई रेस्टोरेंट नजर आ रहा है? हारून ने काफी संजीदगी से इसे पूछा था। नहीं तो, जिले ने नाक चढ़ाते हुए इधर उधर देखते हुए कहा था। तो फिर मैं डॉक्टर साहिबा को खाना कहाँ से लाकर दूंगा? हारून ने आईब्रो उचकाते हुए इससे पूछा। जिले ने इसे घूरा। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब तो शाम हो गई है, भूख से मेरे पेट में आग लगी हुई थी। जिले ने मुंह बनाते हुए रूहान से लहजे में कहा। हारून का दिल नरम पड़ा। आप मुझे खाकर अपने पेट की आग बुझा सकती हैं, आई डोंट माइंड। हारून ने इसके करीब आते हुए काफी संजीदगी से कहा। बड़ा गोश्त मुझे नहीं पसंद। जिले ने इसे देखते हुए नाक चढ़ाते हुए कहा। हारून के चेहरे पर तासुफ वाले तासरात थे। जिले, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना वो लोग हम तक पहुंच सकते हैं आसानी से अगर आपकी यही स्पीड रही तो। हारून ने इनके देखते हुए तंजिया कहा। मुझसे नहीं भागा जाएगा। जिले ने खुश्क गले को तर्क करते हुए मुंह बनाकर कहा। हारून ने एक दो पल इसे देखा, फिर वो इसे अपने बाहों में उठा चुका था। जिले ने हैरत से इसे देखा जो संजीदगी से सामने की तरफ देखते तेज कदमों से चलता जा। मुझे ना हो तो इतना बुरा नहीं है ये। जिले ने इसे देखते हुए दिल में सोचा। हारून ने पीछे चौंक कर देखा जहां से कदमों के दौड़ने की आवाज करीब आ रही थी। हारून ने इसे परेशानी से देखकर पीछे की तरफ देखा। जिले, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अभी यही लफ्ज इसके मुंह से निकले जब वो बिल्कुल इनके करीब पहुंच चुके थे। हिलना मत वरना जान से जाओगे। राजा ने पिस्टल का रुख हारून की तरफ करते हुए गुस्से से कहा। जिले, तुमने यहाँ से भागना है। हारून ने इसे खड़ा करते हुए धीमी आवाज में कहा। मैं हरगिज तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? जिले ने संजीदगी से बालों को पीछे करते हुए कहा। लड़की को हमारे हवाले कर दे और तू यहाँ से फुट ले वरना जान से हाथ धो बैठे कर। एक और आदमी ने इसे धमकी दी। हारून ने मुठियां भींची। आओ और ले जाओ इसे अगर हिम्मत है तो। हारून ने इन्हें देखते हुए दांत पर दांत जमाते हुए सर्द लहजे में कहा।
क्या कह रही हो शाइस्ता? दादी ने चाय का कप लेते हुए अपनी बड़ी बेटी से हंसने से कहा। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे फैसला इकरार नहीं चाहिए, शाइस्ता ने नवीन को देखते हुए अम्मा से कहा। अम्मा, शाइस्ता ने ठीक फैसला किया है, जरवा बहुत प्यारी है और धीमे मिजाज की बच्ची है। नवीन को यह फैसला बहुत भाया था, इसलिए शाइस्ता के बात पर दिल से ही ताकीद की थी। एतराज़ तो कोई नहीं मुझे, और यकीनन जुल्फ़कार को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। दादी ने सर हिलाते हुए कहा था। लेकिन अम्मा, अगर नादिया ने कोई एतराज़ किया तो? शाइस्ता ने परेशानी से कहा। अरे, इसकी क्या मजाल हमारी बेटी के मामले में बोलने की, वो भी कोई रिश्ता तलाश कर रही है जरवा के लिए। मिली थी एक दिन हॉस्पिटल में, जिस दिन मैं चेकअप करवाने गई थी, जरवा के रिश्ते के लिए कह रही थी। वो मैंने कह दिया, जरवा की कोई टेंशन ना ले, हमारी बच्चियाँ ढूंढ लेंगे हम। दादी ने शाइस्ता को काफ़ी तफसील से बताया था, जिस पर शाइस्ता के चेहरे पर इत्मीनान आए थे। इन्हें अपने बेटे के लिए कोई मासूम सी लड़की ही चाहिए थी, और जरवा से बढ़कर कौन मासूम हो सकती थी, सीधी और सादी भी। शाइस्ता अब इत्मीनान से चाय पीती नवीन से इधर उधर की बातें कर रही थी। हारून ने इस आदमी का हाथ रास्ते में ही रोका था। मेरी बीवी की तरफ देख कर तो दिखा, हाथ लगाना तो दूर की बात है। हारून ने कहते ही जोर से इसका हाथ मरोड़ा था, जिससे इसकी चीख पूरे वीराने में गूंजी थी। जिले ने हैरत से डॉक्टर के गुजरे तासरात देखे थे। अब सब इस पर आ चुके थे। हारून बहुत तैश में लड़ता, कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहा था, बल्कि कोई माहिर फाइटर ही लगा था। जिले को इस वक्त जिले ने सामने पड़ा मोटा डंडा उठाया और एक आदमी के सर पर मारा, जो हारून के गर्दन जकड़े खड़ा था। आह! वो आदमी दर्द से बुलबुलाता हुआ पीछे हुआ था। इन्हें मारने का हुक्म नहीं मिला था, वरना वो लोग गोली से काम लेते, वरना यूं मार ना खा रहे होते। जिले अब डंडा पकड़े गुस्से से बाकियों की तरफ बढ़ी थी। दोनों बीवी लड़ रहे थे इन आदमियों से। जिले, भागो यहाँ से, हारून नीचे कहता इसकी कलाई पकड़े भागा था। वो तेजी से वहां से भागते अंधेरे में कहीं गुम हो चुके थे। हारून ने पिस्टल जाते वक्त उठा लिया था। राजू ने सारी बात चौधरी मुनीब को बताई, जिसने गुस्से से सारी शराब की बोतलें नीचे गिराई थी हाथ मारकर। राजू, मार दो इस लौंडे को, और वो लड़की अब मेरी है, सिर्फ मेरी, वो भी सारी जिंदगी के लिए। मुनीब ने होंठ बेंच कर इसे बावर करवाया था। जी चौधरी साहब। राजू ने जल्दी से कांपते हुए हाँ की थी। इतनी शिद्दत इसने पहले चौधरी मुनीब के लहजे में कब महसूस की थी, इसीलिए घबराना तो बनता था ना इसका। चौधरी जी, वो लड़का बहुत बड़ा सख्त है, राजू ने हिलखिलाते हुए कहा था। मुंह बंद रखो अपना, और नकारा इंसान, मार दो इसे और लड़की ले आओ। चौधरी ने गुस्से से दांत पीसते हुए इसे हुक्म देकर फोन बंद कर दिया था। पूरी क्लास में जरवा को जज करता रहा था अपनी निगाहें और हरकतों से, जिस पर जरवा सिर्फ सब्र के घूंट ही भरती रह गई थी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, अजमान ने इसे पार्किंग की तरफ बढ़ते देखकर आंखों पर ग्लासेस लगाते हुए कहा मगरूर लहजे में। मेरी गाड़ी ठीक हो चुकी है, सो मैं खुद जा सकती हूँ। इसने कीज से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए संजीदगी से कहा, मिस जरवा, आप मेरे ही साथ यूं ही आया करेंगी और जाया करेंगी, इट्स डन। इसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, जो जरवा को आग लगा गया था। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ, मेरे अभी हाथ पैर सलामत है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ते भी सारे आते हैं मुझे। जरवा ने गुस्से से कहा, जिस पर अजमान ने इसे हाथ से चाबी छीनी थी, जिस पर जरवा ने इसकी तरफ पलट कर गुस्से से घूरा था। क्या मसला है आपके साथ? जरवा ने होंठ भींचते हुए इसे तीखे लबो लहजे में पूछा था। मसला आपके साथ है, मेरे साथ नहीं, इसने कीज ऊपर की तरफ उछालते हुए लापरवाही से कहा था। क्या मतलब? जरवा ने सच होते हुए इससे पूछा। मतलब आपको खुद समझना ही होगा। अब आप देर मत करें और मेरे साथ आएं। अगर टाइम पर घर नहीं पहुंचेंगे तो। अजमान ने कीज को हाथ में घुमाते हुए पास ही खड़ी अपनी स्पोर्ट बाइक की तरफ देखा। इंतहाई बदतमीज है ये तो, जरवा ने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए कहा, और फिर गहरी सांस लेती इसके पीछे बैठी। इस दफा हाथ इसके कंधे पर रख दिया, जिस पर इसकी ग्रीन आंखों में चमक गुजरी थी महज इसके छूने पर ही। आप कब स्टार्ट करेंगे इसे? मुझे देर हो रही है, जरवा ने तीखे लहजे में इसकी पुश्त को देखते हुए जिताया। अजमान हल्का सा पीछे मुड़ा। अब जरवा और इसका चेहरा 1 इंच की दूरी पर था। जरवा ने ठटक कर इसे देखा, जिसकी आंखें पल में कई रंग बदलती थी। जरवा का दिल जोरों से धड़का था, जिस पर वो घबरा कर रह गई थी। मिसेस जरवा, वो इसकी गंभीर आवाज पर इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। अब कुछ बोल रही थी शायद, अजमान ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए गंभीर आवाज में कहा। जरवा ने इसकी नजरों से बचने के लिए जल्दी से अपना हाथ इसके गिर्द रखे थे। अजमान हल्की सी मुस्कुराहट से सीधा हुआ और बाइक को फुल स्पीड में छोड़ा। जरवा की नजरें अब धुंधला गई थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कितनी बेबस हूं मैं। जरवा ने आंसू अंदर ही कहीं उतारे थे। वह अफसुर्दा सी सोच रही थे।
अफसुर्दगी से सोचा। जरवा की नजरें हमेशा की तरह इसके हल्के ब्राउन बालों पर थी जो धूप में खूब चमकते थे, इधर उधर उड़ते। वो जरवा को भी अपने साथ ही बांधे हुए थे। हारून, वो देखो। जिले ने इसकी तवज्जो दूर गांव की तरफ दिलाई जहां से बल्ब वगैरह जलते हुए नजर आ रहे थे। हारून ने सर हिलाया और जिले का हाथ पकड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। जिले, आई नो, वो हमें सबसे पहले इसी गांव में ही तलाश करेगा, हारून ने रुकते हुए संजीदगी से कहा। तो फिर? अब जिले ने मुंह बनाते हुए पूछा। जिले, वो सामने हवेली को देख रही हो? हारून ने दूर खड़ी सुर्ख हवेली की तरफ इशारा किया जो बहुत शान शौकत से खड़ी थी। तो क्या यहाँ जाना चाहिए हमें? जिले ने होंठों पर उंगली बजाते हुए इससे पूछा था, जिसने सर हिलाते हुए ताकीद की थी अपनी बात की। चलो यहाँ से, इसी हवेली में ही हम रात रहेंगे, हम सुबह चले जाएंगे। मैं फोन भी कमरे में छोड़ आया था, वरना इन्हें कॉल ही कर देता, सारी टीम परेशान हो रही होगी। हारून ने आगे बढ़ते हुए संजीदगी से कहा। जिले ने इसकी वाइट मैली शर्ट को देखा और एक हाथ में इसकी कलाई पकड़े तेज कदमों से चलता अच्छा लगा था। उफ, इसकी मूछें। जिले की जब नजर इसकी मूछों पर पड़ी तो वो झुंझला कर रह गई। पीछे हट जाओ सब लोग। सब। एक आदमी गाड़ी से निकलता हुआ तेज आवाज में बोला और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला जहां से एक दरमियानी उम्र का बुजुर्ग आदमी निकला था। एक मिनट बुजुर्ग साहब। हारून की ऊंची आवाज पर वो वाइट कपड़ों वाले सफेद दाढ़ी वाले इंसान रुका था। वो देखने में ही कोई रोबदार सा सोबर सा लगता था। हारून और जिले जल्दी से इनके पास आए। बच्चों, कोई मसला है तुम लोगों के साथ? दाढ़ी वाले आदमी ने इनकी परेशान जी। असल में हारून ने इन्हें सारी बात बता दी जिस पर इन्होंने अफसोस से सारी लाए। आओ मेरे साथ, वो कहते हुए आगे बढ़े थे। पीछे जिले और हारून भी बढ़े और इनके कुछ आदमी भी। जरवा ने खामोशी से जुल्फकार साहब को देखा जो स्टडी रूम में खड़े हारून से बात कर रहे थे। थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। जिले का ख्याल रखना हारून, तुम जानते तो हो थोड़ी नाजुक मिजाज है वो। मैं निकल ही रहा था गांव के लिए। तुम दोनों सुबह होते ही वापस टीम के पास पहुंचो। मैं सब बहुत परेशान है सुबह से। मैं कॉल करता हूँ इन्हें कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। जुल्फकार साहब ने कहकर फ़ोन बंद किया और सीनियर डॉक्टर के नंबर पर कॉल करके वो इनसे बात करने लगे। जरवा जो इनसे बात करने आई थी, लेकिन इनके पास तो हमेशा ही अपनी इस बेटी के लिए टाइम नहीं होता। जरवा ने हल्की सी मुस्कान से सोचा और अपनी जगह से खड़ी होगी। डैड, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। जरवा ने इन्हें मुखातिब किया जो कॉल की दूसरी तरफ किसी को हिदायत दे रहे थे। एक मिनट असद, बच्चे अभी तो आप आई हो, रात का खाना खा कर जाना। जुल्फकार साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। जरवा मुस्कुराई। नहीं, मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ खास भूख नहीं है। आप ही जब आएंगी तो फिर आ जाऊंगी। जरवा संजीदगी से कहते हुए स्टडी रूम से निकल गई। पीछे वो दोबारा कॉल की तरफ मुतवज्जा हो गए। जरवा ने बेदर्दी से बहते आंसू साफ किए। इस घर में और उस घर में को भी मैं नजर नहीं आती, जरवा ने अजियत से सोचा था। फिर चादर को सर पर दुरुस्त करती हुई नीचे आ गई थी जहां सब बैठे शाम की चाय पी रहे थे। दादी और चची, इजाजत दें, मैं चलती हूँ अब। जरवा ने इनसे मुस्कुराते हुए इजाजत ली। अर्शमान, जाओ बहन को छोड़ो। अर्शमान जो टीवी देख रहा था दादी के कहने पर बदमजा हुआ था। अम्मा, वो अभी ही तो अकेडमी से आया, थक चुका है। वो अकेडमी भी तो काफ़ी दूर है ना। इरम ने अर्शमान को फ्रेश जूस देते हुए स्पार्ट से अंदाज में कहा था। दादी ने शर्मिंदगी से जरवा को देखा जो इन्हें देखकर मुस्कुराई थी। दादी, आंटी ठीक कह रही हैं, अर्शमान वाकई ही थक गया होगा। मैं चली जाती हूँ, डोंट वरी। जरवा ने मसनूई सी मुस्कान से दादी से कहा और नवीन के गले लगती हुई तेज कदमों से बाहर चली गई। पीछे दादी तासुफ से इरम को देखती रह गई, फिर से किचन में चली गई थी। नवीन ने इन्हें आंखों से तसल्ली देकर समझदार बच्चियाँ चली जाएगी। हारून और वो सोफे पर बैठे थे, सामने चाय के कप धरे हुए थे जो वो पी चुके थे। बस बेटा, ज़माना बहुत ख़राब है, सोच समझ कर चलना चाहिए, इंसान को हर कदम पर एहतियात करनी चाहिए। चौधरी रहमत ने इनकी बात सुनकर कहा था। आप दोनों आराम करना चाहेंगे? अब रहमत साहब ने दोनों से पूछा। नहीं अंकल, हम पहले खाना खाना चाहेंगे, जिले ने बेसाख्ता कहा, जिस पर हारून शर्मिंदा सा हो गया था। जिले ने मुस्कुराते हुए इनसे कहा जो इसकी बात सुनकर मुस्कुराए। सॉरी बच्चे, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं अभी लगवाता हूँ। जैनब बच्चे, इन्होंने कहकर जैनब को आवाज़ लगाई जो इनकी सबसे छोटी बेटी की बेटी थी। जी दादो। एक खुश शक्ल सी लड़की भागती हुई आई थी इनकी पुकार पर। बच्चे, मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दो। रहमत साहब ने अपनी पोती से हल्की सी मुस्कान से कहा। जी दादो, मैं लगवा रही हूँ, आ जाएं आप लोग, खाना रेडी है। जिले झट से उठी थी जबकि हारून एक बार फिर से शर्मिंदा हो गया था अपनी बीवी की उजलत पर। आए आप भी, जैनब ने मुस्कुराते हुए हारून को मुखातिब किया था। हारून सर हिलाता वो रहमत साहब से इजाज़त लेता इनके पीछे आ गया था। जिले खाने पर टूट चुकी थी, वो किसी को भी देखे बगैर खाने से भरपूर इंसाफ कर रही थी। हारून को चौंक आ गई थी। उफ, ये लड़की, हारून ने चावल खाते हुए तासुफ से सोचा था। अजमान इसे देखकर चौंका जो
देख तो सामने रही थी, लेकिन इसका ध्यान कहीं और था। इससे इसका सर दीवार पर लग सकता था। वो ऊपर बालकोनी में खड़ा था, वो नीचे की तरफ दौड़ा था। तुम इस तरह कहाँ जा रहे हो? जिनिश ने इसे भागते देखकर हैरानी से पूछा था। कहीं नहीं, इसने बिना रुके इसे जवाब दिया और बाहर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। जरवा होंठ पीछे चलती जा रही थी। जब अजमार ने सरद से इसकी कलाई पकड़े इसे अपनी तरफ खींचा। तुम पागल हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अजमार ने इसे झंझोड़ते हुए दृष्टि से कहा, लेकिन फिर चौंका इसकी सुर्ख नम आंखें देखकर। जरवा, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे। अजमार ने इसे कंधे से पकड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। कुछ नहीं हुआ मुझे, जरवा ने शू शू करते हुए कहा। तुम मुझे घर छोड़ दो। जरवा ने इसे देखते हुए अफसुर्दगी से कहा। अजमार ने आंखें सुखेड़कर इसे इसका जद चेहरा देखा। आज यहीं रुक जाऊं? अजमार के लहजे में इस बार बहुत नरमी थी। जरवा ने नाम इशारे लाया। मैं घर ही जाऊंगी। इसने स्विमिंग पूल के शफाफ पानी को देखते हुए कतियत से कहा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अजमार ने सीने पर हाथ बांधते हुए भवें उचकाते हुए इसे देखा था। क्या? जरवा ने सदमे से इसे कहा। अजमार की आंखें मुस्कुराई थी इसके शॉक वाले रिएक्शन पर। मैं जिद्दी हूँ? जरवा ने अपनी तरफ उंगली करते हुए सदमे से पूछा। अजमार ने नाक चढ़ाकर हाँ में सर लापरवाही से सर हिला दे। तुम खुद जिद्दी हो। किसी को कहने से पहले खुद को देख लिया करो, अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन जिद्दी है। जरवा ने नाक के नथने फैलाते हुए गुस्से से कहा। इससे तो गुस्सा ही आ गया था अजमार का इसे जिद्दी कहना। अजमार इसका गुस्से वाला रूप देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। इसकी मुस्कुराहट जरवा ने तो नहीं, अलबत्ता जिनिश ने जरूर देखी थी और वो समझ गई थी इसके इनकार की वजह। कैसे ना समझती? ऐसा रूप किसी ने देखा था अजमार का? जिनिश ने लब बींच कर आंसू रोके थे। वो तो शुरू से ही इसे चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ बेड शेयर नहीं करूंगी। जिले ने सीने पर हाथ बांधते हुए अकड़ कर कहा। एज यू विश मिसेस जुलेखा, आप नीचे सो सकती हैं। मुझे भला क्या एतराज़ होगा इस पर? हारून ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, जिस पर जिले ने हैरत से इसे देखा। तुम खुद नीचे सो जाओ, मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। मुझे नहीं नीचे सोना, कोई छिपकली आ गई तो? जिले ने पहले गुस्से से कहा, फिर छिपकली का नाम लेते हुए आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई थी इसकी। सॉरी जुलेखा जी, मैं तो हरगिज़ नीचे नहीं सो सकता। अगर सोना है तो बेड पर सो सकती हो, अदरवाइज इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं मुझसे मत रखना। हारून ने तकिया बाहों में लेते हुए दो टोक लहजा अपनाया था, जिस पर जिले मुंह बनाती रह गई। मैं नीचे ही सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं सोऊंगी। जिले ने तकिया इसके बाहों से खींचते हुए गुस्से से कहा, जिस पर हारून ने मुस्कुराकर इसे चढ़ाया। जिले ने तकिया नीचे पटका और लेटी। चौधरी रहमत बहुत अच्छे इंसान हैं, जिले ने कुछ देर बाद इससे कहा। हारून ने सिर्फ इतना ही कहा था, जिस पर जिले ने होंठ लटकाकर इसे देखा। जिले, मैंने कुछ देर पहले एक छिपकली के बच्चे को बेड के नीचे जाते देखा था। हारून का इतना ही कहना था कि जिले झट से उठी। दूसरे ही पल बेड पर थी। तुम सच कह रहे हो? जिले ने डरती हुई आवाज़ में इससे पूछा था। बिल्कुल सच। पहले कितने झूठ बोले हैं मैंने तुमसे, जो अब झूठ बोलूँगा? जिले जल्दी से इसके पास लेटी थी, जिस पर हारून ने होंठ भींचकर अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। तुम्हें सुबह छोड़ आऊँगा मैं, आई प्रॉमिस। और अजमार कभी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ता, याद रखना ये। अजमार ने खुद को देखती जरवा से कहा था। वो इसे देखती जा रही थी। अजमार हल्का सा मुस्कुराया था इसकी महवियत पर। मिसेस जरवा, अंदर चले, बड़ी ठंड है। पहले ही इतनी कमज़ोर हैं आप, अगर ठंड लगी तो बुखार हो जाएगा आपको, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात माने और अंदर चली जाएं। शाबाश। जरवा ने ना में सर हिलाया और ना हाँ में। बस टुकटुकी बांधे इसे देखती रही। अजमार ने भी संजीदगी से अब इसे गौर से देखा कि क्या मसला है इसके साथ, जो सुबह से स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। तुम्हें अगर कोई भी मसला हो या परेशानी हो मुझसे कहना, सब सॉल्व कर दूंगा। अजमार ने इसका हाथ पकड़कर इसे अंदर लाते हुए मजबूत लहजे में कहा था। जरवा की चुप्पी नहीं टूटी थी, बल्कि आंखें धुंधलाई जा रही थी इसकी बार बार। हारून उठो, मुझे ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई है। वो कहीं हलीमा के आदमी ना आ गए हों। जिले ने बाहर से कदमों की आवाज़ सुनकर हारून को हिलाते हुए कहा था। जिले, कदमा, खुदा का वास्ता है मुझे सोने दो। कभी तुम्हें गोलियां चलने की आवाज़ आती है तो कभी चमगादड़ की, और अब कदमों की आवाज़ें भी तुम्हें ही क्यों सुनाई दे रही हैं? डियर डॉक्टर साहिबा, आखिर कब आप खुद भी सोएंगे और मुझे भी सोने देंगी? हारून ने अब की दफ़ा गुस्से से बुनबुनाते हुए इसे डांटा, जो कब से इसे ऐसे ही डिस्टर्ब किए जा रही थी। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ तुम। अगर इस हलीमा के आदमी मुझे तुम्हें उठाकर ले गए तो मुझे मत कहना, क्योंकि मैंने तो अपना बंदोबस्त किया है। जिले ने मुंह बनाते हुए कहा। हारून ने हैरत से इसे देखा। ऑफ योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मुझे नहीं तुम्हें उठाना चाहते हैं। दूसरी बात, कौन सा बंदोबस्त किया है? मैडम ने बेड से तो एक पाँव नीचे नहीं उतरे। आपने बंदोबस्त कब से किया था? आपने बताएं ज़रा।
हारून ने कोहनी के बल उठते हुए खासे तंजिया लहजे में इसे पूछा था, जो नाक मुंह चढ़ाए इसे ही देख रही थी। मैं कब से इस गांव से निकलने का आइडिया सोच रही थी, तुम्हारी तरह सो नहीं रही थी। वो जहां तक मुझे उठाने की बात है तो वो उठवा कर तो देखे, नस्लें याद करवाऊंगी इस कमबख्त औरत की। हल्का ले रखा है मुझे, जिले ने गुस्से से बाल पीछे करते हुए नाक सिकोड़ी थी, जिस पर हारून ने गहरी सांस लेते हुए तासुफ से इसे देखा था। आप सोच लीजिए यहाँ से निकलने का तरीका, लेकिन मुझे सोने दे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी ये मुझ मासूम पर। हारून कहते हुए लेटा और कंबल मुंह पर ले लिया। वो ना कल रात सो सका था और ना आज जिले इसे सोने दे रही थी। इसकी नींद की तो वो शुरू से ही दुश्मन थी। हारून ने दांत पीसते हुए सोचा, जबकि जिले कंबल में गुम हुए हारून को गुस्से से देखती, कभी दीवार पर देख रही थी और कभी कोई छिपकली ही ना आ जाए, इस पर गिर जाए, यही डर इस पर बेचारी को सोने नहीं दे रहा था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर किस्त पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।